The controversy and the politics around NEET. Now, despite multiple assurances by the central government and Education Minister Dharmendra Pradhan, there is no let-up in the politics around NEET. From Delhi to Jammu to Chandigarh to Jaipur to Hyderabad to Bengaluru, Congress workers hit the streets in protest as a part of their nationwide dharna demanding a re-NEET. Now, the government on its part has taken stock of the investigation against NEET cheats in Delhi, in Godhra and in Patna, and it has also announced a high-powered panel that will be set up to review the NTA, or the National Testing Agency. Times Now is now going to break down for you how the claims made by the NTA initially, they are just not adding up. In the initial statement, the NTA went on to say that the integrity of NEET exam has not been compromised. But the fact is that there are 3 FIRs that have been filed in Delhi, in Bihar and in Godhra. In Bihar, the FIR mentions the paper leak fact. The NTA also initially dismissed the paper leak theory as baseless. But like we showed you through these confession notes, that most of the students who are arrested, they claim that they got leaked question papers one night before the exam. NTA also in its statement earlier said that nobody from outside was allowed to enter the exam halls. But in Godhra, as the investigation pans out, teachers involved in this very racket came into the exam centers where students left blank answer sheets and filled in answers for them. The NTA then also went on to say that biometric authentication are done at all centers, but in Delhi, where the focus is now on the problem solver gang as a part of the investigation, the Delhi police found discrepancies in the biometric data, and that is why now the anger against the NTA is growing. Let's also take you through some political reactions that have come in from the Congress party's protest. Today, the Congress party is holding a nationwide protest against the NEET exam, as yesterday only Rahul Gandhi had made several allegations against the government of India, and for that matter now, today the Delhi Congress is holding its protest outside the Delhi Congress office, and we have been joined by some of the protesters here as we've seen the visuals as well. And this is symbolic protest the eyes of the उस अहंकारी और हिटलरशाही सरकार को बताना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर गर्मी चल रही है, आपने बच्चों को आज गर्मी के अंदर लगा रखा है, पेपर लीक कर रखे हैं, हम उसी का जवाब और हिसाब मांगने आए हैं। Protest outside the Delhi Congress office, as they are saying and demanding that there should be re-examination of the NEET exam. किस तरीके से इस देश में नीट और यूजीसी को लेके 33 लाख बच्चे के साथ किस तरीके से केंद्र सरकार ने पेपर लीक सरकार बोल सकता है। इन सारे मंत्री लोग ने बोलते हैं हमने वार रुकवाता है। अरे भाई, वार रुकवा रहे तुम लोग ने, देश में जो पेपर लीक हो रहा है वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे इन लोग ने? इसकी क्यों इस्तीफा नहीं क्यों दे रहे, बात नहीं क्यों रहा है? नरेंद्र मोदी क्यों मौन क्यों है इसको लेके? छात्र के साथ खेलने का काम बंद करो। आप में उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और जो इसके पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से हमारे के कार्यकर्ता, हमारा एक साथी मजबूती से खड़ा है, और जो गलत चीजें हो रही हैं, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पॉलिसी लेकर पेपर लीक को रोकने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है। अब मोबाइल फोन प्रिंटिंग प्रेस में बैन किए हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहनी चाहिए। इस नई पॉलिसी पे क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? निश्चित तौर से देखिए, हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, और ये जो पॉलिसी है, सारी पॉलिसीज इनकी फेल है, क्योंकि ये केवल जनता को घुमाने के लिए आज जैसे योग डे पर योग कर रहे हैं। ये क्या एक इवेंट है, एक इवेंट का पार्ट बना दिया। आज बच्चे अवसाद में हैं, बच्चे परेशान हैं, उनको करिए, इनकी सारी पॉलिसीज फेल हैं। Times Now has now accessed the mark sheets and confession notes of the arrested accused in the Bihar NEET leak case. These mark sheets reveal the entire story. Anurag Yadav, who is the relative of alleged arrested kingpin Sikandar Yadavendu, has got 85 plus in physics and a little over 5 percentile in chemistry. Another arrested accused, Ayush Raj, whose mark sheet we have accessed, also got 15% percentile in physics, 15% in chemistry, but a whopping 87% in biology.
We also have source-based information that Bihar Economic Offences Unit officials met Education Minister yesterday and apprised him of the investigation status. They discussed the details and evidence with him in the case. Senior officials of the NTA have also been said to be present in that meeting, where confession notes and other critical pieces of evidence were shown. Bihar EOU officials reportedly confirmed that the exam was compromised in a few centers in the state. On the sidelines, war of words has now broken out between Bihar government and the RJD after Bihar Deputy Chief Minister Vijay Sinha first claimed that Tejasvi Yadav's personal secretary is the main accused in the case. हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? 2 दिन से मुंह में लकवा लगा हुआ था क्या कि 2 दिन से जबान नहीं खुल रही थी? परसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामने आके बोलते क्यों नहीं है? चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके पीए जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है? सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे, बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्जाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई? नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस। एक झूठी कहानी के आधार पर अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूं। आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऊपर कर दीजिए। इसमें जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम अमित आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। In the middle of all this back and forth, yesterday, Group Editor-in-Chief Navika Kumar spoke with Union Education Minister, who not only took moral responsibility for things that had gone wrong, but also promised that strictest of action will be taken against people who are found to be culprits in this case, irrespective of what position do they hold. कमेटी बनाई जा रही है धर्मेंद्र प्रधान जी, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या एक्शन टाइम बाउंड होगा? कब सबमिट होगा? कुछ डिटेल्स हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कमेटी का निर्दिष्ट मैंडेट रहेगा, उसकी कंपोजिशन जल्दी ही घोषणा किया जाएगा और उसकी समय अवधि रहेगी, क्योंकि हमें इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है, सुधार करना है और आगे भी जाना है। धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत से सवाल हैं, जवाब अभी शायद कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में, विद्यार्थियों के मन में बहुत से सवाल हैं और कुछ सवालों के जवाब आज मिले, कुछ और जवाबों के इंतजार में हम रहेंगे। पहले आपने एनटीए को एक क्लीन चिट दिया और अभी अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। क्या आपको एनटीए की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था? गड़बड़ कहां पर हुई? कोई ऐसे आपके पास तथ्य सामने आए हैं? एक विषय को स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। 13 तारीख को आपके चैनल में क्या मुद्दा था?
आपके चैनल में ग्रेस मार्क मुद्दा था, सारे मीडिया में मुद्दा ग्रेस मार्क था। ग्रेस मार्क के ऊपर उसी दिन नया पद्धति सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रीटेस्ट करो। उस समय तक जितना जानकारी मेरे पास था और कोई गड़बड़ी की समस्या हमारे सामने नहीं था, लेकिन इस विषय में प्रजातंत्र में कोई विषय को स्वीकार करने में कोई द्विधा नहीं है, कोई असमंजस्य नहीं है। मूल विषय छात्रों की हित है। कोई भी संस्था हो उसको सुधार और उसको ऊपर कुछ कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, जो आज भी कह रहे हैं।